Hello students, now see the next page, page number 130. We have done in previous class up to user agent. Now before that I have told you how our personal information is in threat. Okay, tracking scripts, identity theft, all that. Now today we are going to learn how we can protect our personal information. The very first solution is anonymous browsing. Anonymous means होता है their person name is not mentioned. You cannot know who is doing browsing. We need to hide our identity either intentionally or due to governmental and professional restrictions. Since all the requests originating from our machine carry a lot about our identity with them, we need to be aware of the way which this information can be concealed from the third party, proxy server or unauthorized vendors. By using anonymous browsing, we eliminate all these factors and browse the net without revealing. Without means without disclosing any personal information. Anonymous browsing means होता है कि when we are trying to hide our identity from our machine, ISP, from third party, from anyone, so that no one can recognize us if we are trying to browsing. जब भी हम browsing करें तो anonymous में क्या होता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट की हैं, कौन से लिंक्स विजिट किए हैं. इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट. नाउ नेक्स्ट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग. अब प्राइवेट ब्राउजिंग तो एनोनिमस ब्राउजिंग का सॉल्यूशन है प्राइवेट ब्राउजिंग. It is also known as incognito mode is a means by which we can safeguard our identity and browsing details when online. कैसे होती है प्राइवेट ब्राउजिंग, ये मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज़ आप गूगल क्रोम पे गए. ठीक है, अब आपको अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना है. ठीक है, तो इसको आप कैसे प्राइवेट ब्राउजिंग कैसे करोगे, उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं. जैसे क्रोम है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन. ये देखिए आ गया प्राइवेट ब्राउजिंग में, ये इनकॉग्निटो मोड आ गया. अब आप यहाँ पे कुछ भी करते हो, XY जीमेल अपनी एक्सेस कर रहे हो, कुछ भी एक्सेस कर रहे हो. ठीक है, सब कुछ प्राइवेटली होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा. अगर हम इनकॉग्निटो मोड पे नहीं काम करते हैं तो आपने देखा होगा आपको अपनी ईमेल पे साइन इन भी नहीं करना पड़ता है, बार बार होता है ना. लेकिन इनकॉग्निटो मोड में अब हम आ गए तो व्हाट एवर आई डू, इवन मेरे ISP को, किसी कुकीज़ को, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट को, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा. तो हर वेब ब्राउज़र पे कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, उन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके हम इनकॉग्निटो मोड पे आ जाते हैं. इसको हम कहते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग. मीन्स नो वन कैन नो अबाउट योर ब्राउजिंग. ओके, private browsing, also known as incognito mode, is a means by which we can safeguard our identity and browsing details. कैसे? Saving of our details as is in the autofill feature. जैसे भी मैंने आपको दिखाया. अब if you will without incognito mode, अगर आप अपनी Gmail ओपन करते हो तो उसको आपको साइन इन नहीं करना पड़ता क्योंकि आप साइन आउट करते ही नहीं हो. ठीक है, बट इफ़ यू आर वर्किंग इन incognito mode, you have to sign in again and again. There will be no autofill information. Accidental saving of usernames and password. You have seen when you are putting your password, sometimes dialog box appears. Do you want to remember your password for that page? By mistake, sometimes you click on yes. आपको never पे क्लिक करना चाहिए. तो इस तरह के जो accidental saving हम करते हैं वो उससे हम बच जाते हैं. Saving of browsing history when accessing the web from a public domain. When you are accessing or visiting the websites, in history you can see there are so many वेब पेजेस. जितने भी वेब पेजेस आपने विज़िट किए हैं वो सारे के सारे आपको उस पर मिल जाते हैं. ठीक है, हिस्ट्री में आप जाकर देख सकते हो. इट विल शो यू ऑल द वेबसाइट्स विच यू हैव विजिटेड. बट इफ़ यू आर डूइंग प्राइवेट ब्राउजिंग, अगर आप इनकॉग्निटो मोड पे हो तो इट विल नॉट शो और इट विल नॉट सेव एनीथिंग. यू आर टोटली सेफ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग ऑफ डाटा इन कुकीज़, वो भी नहीं होता है. लोकेशन ट्रैकिंग नॉट पॉसिबल. दो प्राइवेट ब्राउजिंग विच इज़ नोन एज इनकॉग्निटो मोड restricts the information
being sent out from your device, it still does not make you completely anonymous. Your ISP can still track your behavior through your IP address. Okay. प्राइवेट ब्राउजिंग से क्या होता है, स्टिल नॉट मेकली कम्प्लीटली अनोनिमस. आपका ISP लेकिन जो है, जिसकी भी आप इंटरनेट सर्विसेज जैसे जियो है, योर एयरटेल, ये आपके ISP हैं, बट ये फिर भी आपके IP एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं. स्टिल इफ यू आर यूजिंग प्राइवेट ब्राउजिंग. कैसे? टू एक्टिवेट द इकॉग्निटो मोड, ओपन योर ब्राउजर, सेलेक्ट द फाइल न्यू प्राइवेट. दीज आर द वेज. या तो आप फाइल पे जाके न्यू इकॉग्निटो मोड करो, और आइदर यू कैन गो थ्रू दी शॉर्टकट कीज. Is that clear? Most of us book our flight tickets and hotel rooms online. When we search for the available flights or hotels on a particular date for a particular destination, tracking cookies are generated. कल भी मैंने आपको बताया था कि once you are searching for a particular thing, okay, you have blocked the notification or whatever. लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है, आपको उसी वेबसाइट से नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती है. तो इन्होंने आपको एक एग्जांपल दिया है. सपोज यू आर सर्चिंग फॉर अ फ्लाइट और अ होटल बुकिंग. ओके, योर ट्रैक some scripts are there, they keep on tracking your visiting surfing habits. Next day what you will see, suppose today's flight tickets money is 2055 या जो भी है. नेक्स्ट डे आप जब उसी वेबसाइट को विजिट करोगे तो what you will be surprised to know, you will find ticket rates will increase. हमें लगता है ना कि हम ऑनलाइन जो भी कुछ कर रहे हैं डैट इज़ चीप, इकोनॉमिकल, बट एक्चुअली नहीं होता. इनको कैसे फ़ायदा होता है, ये ट्रैक करते रहते हैं कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बार बार सर्च कर रहे हो. और जब इनको ये पता चल जाता है कि यू आर फॉन्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो उसके ऑटोमेटिकली जब आप उसको एक्सेस करोगे तो उसके रेट इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन द साइट टू बुक द टिकट्स, यू सी डेट प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. तो ये होता है ट्रैकिंग स्क्रिप्ट में. This is because those websites are tracking your searches and know what you have to travel on a particular date. It is an incognito mode. The ticket fares on hotel tariffs do not change as the site is unable to check if you have visited the site. लेकिन अगर आप incognito mode पे हैं तो कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता and you can save your money. Proxy servers. First solution. Proxy server क्या होता है? It is a dedicated computer or a software which acts as an intermediary between an endpoint device such as computer and server from which you are requesting. So the tracking website will get the information on the proxy server and you can still browse the site without disclosing your IP address. देखो, अगर आप चाहते हो कि कोई आपका IP एड्रेस ना लोकेट करे तो आप यू कैन यूज़ द प्रॉक्सी सर्वर. ये एक सॉफ्टवेयर होता है. आप जब नेटवर्किंग वेबसाइट्स, जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो सेटिंग्स में कुछ ऑप्शंस होते हैं. अगर आप प्रॉक्सी सर्वर को ऑन कर दो, ये देखो, ये इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया है. तो इफ़ योर प्रॉक्सी सर्वर इज़ ऑन, जिसको हम फायरवॉल भी कहते हैं, अगर आपने फायरवॉल लगा दी तो ये आपके डिवाइस के बीच में और इंटरनेट के बीच में आ गया. अब इंटरनेट के जब भी आप कुछ एक्सेस करोगे, इट विल गो थ्रू दिस फायरवॉल टू इंटरनेट, और इंटरनेट से कुछ भी आपके पास आएगा तो उसको इस वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा. एंड दिस वॉल, दिस प्रॉक्सी सर्वर विल नॉट अलाउ टू क्रॉस एनी इलीगल सर्विस. कोई भी इलीगल नेटवर्क इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पे नहीं आ सकता. ठीक है, तो इससे आपका IP एड्रेस भी कोई एक्सेस नहीं कर सकता. जैसे इन्होंने आपको एक स्कूल एग्जाम्पल दिया है. इन्होंने क्या किया हुआ है, स्कूल के बीच में और इंटरनेट के बीच में प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया है. ठीक है, स्कूल की वेबसाइट में और उसमें प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया है. तो अब क्या होगा, जब भी स्कूल के PC से कोई रिक्वेस्ट जाएगी वो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाएगी. प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगी, प्रॉक्सी सर्वर से वेबसाइट पे आएगी, वेबसाइट से प्रॉक्सी सर्वर पे और प्रॉक्सी सर्वर से आपके स्कूल के PC पे. तो इट मीन्स यहाँ से कोई भी इलीगल रिक्वेस्ट नहीं जा सकती. इलीगल नेटवर्क ट्रांसफ़र करने के लिए उसको उस फायरवॉल को क्रॉस करना पड़ेगा जो प्रॉक्सी सर्वर है. तो प्रॉक्सी सर्वर विल नॉट अलाउ टू डू दिस. ओके, तो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ दिस फायरवॉल वी कैन प्रोटेक्ट अवर IP एड्रेस. सेकेंड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. वर्चुअल मीन्स होता है इमेजिनेशन. ये क्या करता है, एक आर्टिफिशियल IP एड्रेस जनरेट कर देता है. उसके लिए VPN आपके मोबाइल में भी होता है, लेकिन वो ऐसे ही ऑन नहीं होता. उसके लिए आपको कुछ पेमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है टू नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर. ये एक वैल्यू एडेड सर्विस है.
इंटरनेट के लिए जैसे आप पे करते हो वैसे वर्चुअल के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। व्हेन यू पे तो वो एक आर्टिफिशियल आईपी एड्रेस क्रिएट कर देते हैं, मीन्स कोई भी आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं जान सकता। VPN allows you to hide your true identity by encrypting the data and web traffic, thus making it impossible for any third party to decode it. A VPN changes your IP address and connects you to a server with a different IP and location. Means it will generate वो एक आर्टिफिशियल आईपी एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल आईपी एड्रेस जनरेट करने से क्या होगा, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है इंटरनेट से, वो उस आईपी एड्रेस पे जा रही है। तो आप ही को रही है, लेकिन आपका एक आर्टिफिशियल आईपी एड्रेस जनरेट हो गया तो उसके पास तो आर्टिफिशियल आईपी एड्रेस है, बट ही विल नॉट बी एबल टू नो योर ओरिजिनल आईपी एड्रेस। तो इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ फायर वॉल। जितनी भी बिजनेसमैन होते हैं, गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, ये सब इन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर डाटा एंड आइडेंटिटी ऑनलाइन, कैसे कर सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ चेंज आवर लाइफ्स इन काउंटलेस पॉजिटिव वेज, बट इट ऑल्सो हैज़ अ डार्क साइड। एवरी 3 सेकेंड समवंस आइडेंटिटी, आपने देखा आजकल लोग कितनी ज़्यादा आइडेंटिटी हैक होती है। विद सोशल मीडिया चैनल्स like Facebook, Twitter remaining as popular as a server, cyber criminals are able to access a wealth of personal information online. Even people who think they are being cautious with their privacy settings would be vulnerable to a cyber attack if third-party applications to access their profiles. इन्होंने आपको बताया कि how we are compromising and how our identity is stolen from social networking websites. ऐसा क्यों होता है? Because we have the habit of put all the information. हम अपनी लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, अपने फैमिली मेम्बर्स सब कुछ डाल देते हैं। उससे क्या करते हैं लोग, आइडिया लगा के उन सब का कॉम्बिनेशन बना के आपका पासवर्ड भी क्रैक कर लेते हैं। तो इन दिस वे दे एनीवन कैन हैक योर आइडेंटिटी। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? द बेस्ट वे टू लिमिट योर डाटा शेयरिंग ऑनलाइन, कैसे एक्सक्लूड इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। अगर आपको लगता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू कैन एक्सक्लूड। ज़रूरी नहीं कि आप उसको फिल करो, जैसे फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, चिल्ड्रन एज है, स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, आप इन सारे इन्फॉर्मेशंस को ज़रूरी नहीं है भरना। फॉर एग्जांपल सेलेक्टिव इन एडिंग और नॉट एडिंग फ्रेंड्स, आप डिटेल्स को मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। बी सेलेक्टिव, अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हो, ठीक है। एंड बी सेलेक्टिव अबाउट हिटिंग द लाइक बटन, आप किसी के भी पोस्ट को लाइक नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि आप सबके पोस्ट को लाइक करो, वो भी एक बहुत बड़ा वो होता है, उससे भी लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपका नाम वहाँ मेंशन हो जाएगा। ऑल ऑफ दोज विल मेक हैव टू बी फाउंड। चेक योर सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स, कैसे? फॉर अ मोर सिक्योर प्रोफाइल ऑन एनी सोशल वेबसाइट, चेंज द सेटिंग्स। आपको जब भी पोस्ट करो, योर सेटिंग शुड बी फ्रेंड्स ओनली। अगर आप पब्लिक करते हो, आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स करते हो, तो आपके पोस्ट और लोग भी देख लेते हैं विच आर नॉट इन योर फ्रेंड लिस्ट। सो ट्राई टू पुट ऑन फ्रेंड लिस्ट ओनली। प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन पासवर्ड्स एंड स्ट्रेंथन टू। यू नो सम पीपल हैविंग द हैबिट, सम क्या 80% लोग क्या करते हैं, दे जस्ट पुट देयर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, या फिर अपने बच्चों का नाम या उनकी डेट ऑफ बर्थ या सन। तो दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू गेस, बहुत ईजिली इसको कोई भी ट्रेस करके हैक कर सकता है। तो योर पासवर्ड शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि आप उसको याद ना रखो और भूल जाओ। इट शुड बी लाइक दैट so that you can also easily remember, but no one can guess it easily. Check your phone's privacy setting. GPS location should remain off. अगर आपको ज़रूरत नहीं है, you should keep it off, because GPS ऑन होने से क्या होता है, आपकी लोकेशन को कोई भी easily हैक कर सकता है। Okay, तो thank you. Today we have learned about how we can protect our important information on लाइन। थैंक यू। आज इतना ही करेंगे, तो रीड अप टू दीज 3 पेजेस 130, 131 एंड 132। थैंक यू।